নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা ডাঙৰ খবৰ দিল্লীৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে এবাৰ আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে প্ৰস্তুতি আৰু এবাৰ একাংশ আঁচনিৰ বাবে এতিয়া প্ৰস্তুতি চলাইছে দল সংগঠনে কিয়নো ৰাজনৈতিক দলসমূহে এতিয়া আঁচনিৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু মহিলা ভোটাৰক বিশেষকৈ এতিয়া আকৰ্ষণ কৰিবলৈ বহুকেটা মহিলাৰ বাবে এতিয়া আঁচনি মুকলি কৰি দিছে বিজেপি আপ কংগ্ৰেছ সকলোৱে এতিয়া প্ৰস্তুতি তুংগত তুলিছে সবিশেষ লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত সমাগত দিল্লীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু সমু চাপি আহিছে দিল্লীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু এই দিল্লীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে এতিয়া প্ৰস্তুতি তুংগত তুলিছে ৰাজনৈতিক দলসমূহে 5 ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব দিল্লীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন 5 ফেব্ৰুৱাৰীত দিল্লীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু নিৰ্বাচন সমু চপাৰ সময়তে নিৰাপত্তা হ্ৰাস হৈছে কেজৰিৱালৰ আৰু ইয়াৰ লগতে নিৰাপত্তা হ্ৰাস হৈছে কেজৰিৱালৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ নিৰাপত্তা হ্ৰাসক লৈ কেন্দ্ৰলৈ প্ৰশ্ন আপৰ কেন্দ্ৰলৈ প্ৰশ্ন কৰিছে আপে ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ বিনামূলীয়া আঁচনিৰ এবাৰ প্ৰয়োভৰ ঘটাইছে ৰাজনৈতিক দলসমূহে আৰু এবাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিনামূলীয়া আঁচনিৰ প্ৰস্তুতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰায়বোৰ দলৰে মুখ্য টাৰ্গেট হৈ পৰিছে মহিলা ভোটাৰ প্ৰায়বোৰ দলৰে মুখ্য টাৰ্গেট হৈ পৰিছে আৰু ইস্তাহাৰত জনতাৰ মন জয়ৰ বাবে এবাৰ সকলোৱে চেষ্টা চলাইছে 5 ফেব্ৰুৱাৰী দিল্লীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন 8 ফেব্ৰুৱাৰীত ঘোষণা হ'ব ফলাফল বিনামূলীয়া আঁচনিক সাৰথি কৰি নিৰ্বাচন জয়ৰ পৰিকল্পনা কেজৰিৱাল বাহিনীৰ মহিলা সকলৰ বাবে মাহিলী 1000 টকা পাব আৰু 1000 টকাৰ পৰা 2100 টকালৈকে বৃদ্ধিৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু 60 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ লোকৰ বাবে বিনামূলীয়া সঞ্জীৱনী আঁচনি দিয়া ঘোষণা কৰা হৈছে অটোৰিক্সা চালকৰ বাবে 15 লাখ টকাৰ বীমা আঁচনি বাৰ্ষিক 2500 টকাৰ পৰিতোষিকৰো ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু যেহেতু মন্দিৰৰ পূজাৰীসকলৰ মাহিলী 18000 টকা প্ৰদানৰ আশ্বাস দিয়া হৈছে আৰু মাহিলী 2500 টকাৰ প্যাৰী দিদি যোজনাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কংগ্ৰেছৰ আন এক প্ৰতিশ্ৰুতি মহিলা যেটো মাহিলী 8500 টকা প্ৰদানৰো প্ৰতিশ্ৰুতি কংগ্ৰেছৰ আৰু জীৱন ৰক্ষা যোজনাৰ অধীনত 25 লাখ টকাৰ বীমা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে বিজেপিৰ দিল্লী নিৰ্বাচনৰ সংকল্প পত্ৰই তাকে প্ৰমাণ কৰিছে যেটো মহিলাসকলৰ সমৃদ্ধি আঁচনিৰ অধীনত মহিলাসকলক মাহিলী 2500 টকাকৈ মাননি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি বিজেপিৰ গৰ্ভৱতী মহিলাসকলক 21000 টকা প্ৰদানৰ ঘোষণা কৰা হৈছে এলপিজি চিলিণ্ডাৰত 500 টকাৰ ৰাজ সাহায্য ঘোষণা কৰিছে বিজেপিয়ে হোলি দেৱালীত দিয়া হ'ব এটাকৈ বিনামূলীয়া চিলিণ্ডাৰ আৰু এনেদৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলোৱে এতিয়া মূল টাৰ্গেট কৰি লৈছে এই নিৰ্বাচনৰ বাবে মহিলাসকলক আৰু মহিলাসকলৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 5 ফেব্ৰুৱাৰী দিল্লীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু কোন হ'ব এবাৰ দিল্লীৰ ৰজা দিল্লীৰ শাসন কাৰ হাতলৈ যাব সেয়া 8 ফেব্ৰুৱাৰীতহে গম পোৱা যাব दिल्ली के आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी हरकत की है जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं की गई होगी दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है ये तो हमारे भलाव हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है मैं दिल्ली के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये बहुत गंदी राजनीति है
ऐसे तो कोई दो दुश्मन देश होते हैं। उनके देखा गया था कि अमेरिका ने जापान के अंदर नागासाकी और हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया था। कहीं दो देशों के युद्ध में बायोलॉजिकल वेपन्स फेंक दिए जाते हैं। कहीं दो देशों के युद्ध के अंदर पानी में जहर मिला के वहां पे जाने वाली नदी में डाल दिया जाता है। इस तरह से तो दो देशों के युद्ध के अंदर हम लोगों ने इस तरह के काम देखे थे। लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है ताकि दिल्ली के अंदर अफरा तफरी मच जाए, दिल्ली के लोग मर जाएं और उसका ब्लेम आम आदमी पार्टी पे आ जाए। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं, इतना मत गिरिए, इस हद तक मत करिए। आप दिल्ली वालों को पराया समझते होगे, हम दिल्ली वालों को अपना समझते हैं। दिल्ली हमारे परिवार का हिस्सा है। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं और कोई भी आपके ऊपर किसी भी तरह की अड़चन नहीं आने दूंगा और आप निश्चिंत रहिए। अभी आतिशी जी और भगवंत मान जी ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है और बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे उनसे मिलने का टाइम मांगा है। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आयोग इसमें तुरंत इंटरवीन करेगा और दिल्ली की जनता को इतनी बड़ी त्रासदी से तुरंत मुक्ति दिलाएगा। अभी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी और मेरी पूरी इलेक्शन कमीशन से चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बाकी जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, फुल कमीशन से मुलाकात हुई। दिल्ली में पानी के मुद्दे पर लंबी चर्चा हुई। हमने इलेक्शन कमीशन को बताया कि किस तरह से यमुना में पानी जो हरियाणा से आ रहा है उसमें अमोनिया का लेवल जहरीले लेवल तक पहुंच गया है। दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 1 ppm 2 ppm तक अमोनिया को ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार जो अमोनिया का स्तर है 4, 5, 6, 7 ppm तक पहुंच गया है। 7 ppm अमोनिया यानी जहरीला पानी। हमने इलेक्शन कमीशन से यह आग्रह किया है कि अगर इसी तरह जहरीला पानी आता रहा तो हमारे कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बिल्कुल बंद हो जाएंगे। 30% दिल्ली को पानी नहीं मिलेगा। इलेक्शन कमीशन से आज शाम को मिलने हरियाणा के भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी आ रहे हैं। हमें इलेक्शन कमीशन ने आश्वस्त किया है कि पानी एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, लोगों के जीने मरने से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इलेक्शन कमीशन ने हमें भरोसा दिलाया है कि दिल्ली के लोगों के हित में जो डिसीजन होगा, इलेक्शन कमीशन हरियाणा का पक्ष सुनने के बाद वो डिसीजन लेगी। भारतीय जनता पार्टी की लहर पूरी दिल्ली में है और जनता एक ही बात कह रही है कि ना हवा साफ है, ना पानी साफ है, ना यमुना जी साफ है, ना गंदगी के पहाड़ साफ है, ना रास्ते साफ हैं। इस बार तो आपदा साफ है, क्योंकि जो आज से कुछ साल पहले डबल एक्सेल शर्ट पहनकर आए थे, आज वो डबल सिक्योरिटी मांगते हैं। जो ABCD की राजनीति सिखाने आए थे, बदलने आए थे, आज वो सीधा Z पे पहुंच गए। Z+ डबल सिक्योरिटी लेते हैं, 60 लोगों के साथ घूमते हैं अरविंद केजरीवाल जी। और यही नहीं, जिनके लिए L से लोकपाल था आज लूट हो गई, H से हॉस्पिटल था वो हवाला हो गया, झाड़ू से दारू हो गई, स्वराज से शराब हो गई, पाठशाला से मधुशाला हो गई। ये वो लोग हैं जो कहते कुछ थे लेकिन आज करते कुछ हैं और जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। वायदे पूरे नहीं हुए और महिला विरोधी सोच साफ नजर आती है, जहां एक और अपनी सांसद महिला को पिटवाते हैं मुख्यमंत्री के घर पे, तो दूसरी ओर महिला जो मुख्यमंत्री बनी उनका फोटो ही आम आदमी पार्टी के पोस्टरों से हट जाता है। इसका मतलब अंदर खाते महिला विरोधी हैं और 1000 रुपया जो वायदा किया था वो भी महिलाओं से पूरा नहीं किया। महिलाएं जो राशन कार्ड बनाने आई उनका यौन शोषण हुआ। महिलाओं को टैंकरों की लाइन में लंबे लंबे लाइनें लगाकर खड़े रहना पड़ा, कई घंटे खड़ा रहना पड़ा। और महिला विरोधी सोच ये आपदा वालों की है, ये आम आदमी पार्टी को इस बार जनता हराएगी। निश्चित तौर पर जनता ने दोनों को देखा, कांग्रेस को भी और आम आदमी पार्टी को भी, और इस बार भी इन दोनों की मिली भगत देख रहे हैं। जैसे इन दोनों ने मिलकर दिल्ली को लूटा और दिल्ली का राजस्व घाटा ये पहली बार हुआ है।
ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को राजस्व घाटा लाकर खड़ा कर दिया। और राहुल गांधी जी की डबल डेटिंग चल रही है और वो आजकल रजाई से निकल नहीं रहे। शायद सर्दी जुकाम हो गया है या अंदर ही अंदर सांठ गांठ हो गई है। पहले जिन लोगों ने देश को गिरवी रखा, आज कांग्रेस पार्टी को गिरवी रख दिया है। आज सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी क्यों दिल्ली के चुनाव से भाग रहे हैं। वो पटना और बिहार तो जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली की बेहाल कांग्रेस के साथ खड़े क्यों नहीं हो पा रहे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? प्यार हुआ, इकरार हुआ, तकरार हुआ और अंदर ही अंदर आजकल कौन सा करार राहुल गांधी और केजरीवाल में हुआ। दिल्ली में कितनी सीट मान के चल? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से जीतेगी और एक शानदार सरकार बनाएगी और दिल्ली के विकास को चारों ओर करके दिखाएगी। दिल्ली भाजपा को 26 साल का वनवास दूर होगा? निश्चित तौर पर होगा और ये जनता का जोश दिखाता है कि जनता ने मन बना लिया है कि बहाने बनाने वाली आपदा नहीं चाहिए। ये केजरीवाल जी करते कुछ नहीं, केवल बहाने बनाते हैं, दूसरों पर आरोप लगाते हैं। जनता कहती भाई 11 घंटे भी अगर घर में बच्चा रोए तब भी लोग कहते हैं भाई अब रोना बंद करो। केजरीवाल जी का रोना तो 11 साल से बंद नहीं हो रहा। तो अब रोने धोने का काम नहीं, अब तो दिल्ली को आगे चलाने का काम करना है। विकसित दिल्ली, विकसित भारत बनाने के काम आएगी।